Hi, good evening, friends. Welcome back to my channel AAA Easy Trading and Investing with Manthapa. So today we are going to discuss about a company named Tata Motors Passenger Vehicle, which is TMPV. So TMPV reported Q1 financial year 2026 revenue of 10,877 crores, down 8.2%, but the EV penetration held at 13%. Could this be your next long-term wealth creator? Let's discuss. Post demerger in October 2025, TMPV includes PV and JLR, but tariff pressure and a cyber attack lead to a consolidated group PAT plunge of 63% to 4,003 crores. In next 15 minutes, I will show why this stock could be a gem and a long-term wealth creator. Let's deep dive into how the TMPV makes money. So TMPV operates in three main segments: the Jaguar Land Rover, which includes 71% in financial 2025 of 9 months sale versus a 67% in financial 2022. Premium luxury vehicles including Jaguar sedans, EV, sports car, and Land Rover SUVs. Wholesale volumes: Range Rovers 161.3k units, while compare with our last financial year, Defender 83.9k versus 114.6k as compared to last financial year, Discovery 24.5k versus 30k, Jaguar 19.8k versus 49.k. Geography mix: North America 33%, UK 19%, Europe 18%, China 13%, and rest of the world is 16%. Tata passenger vehicle contribute 11% in 2025 versus 11% in financial year 2022. Sedan, SUV, EV like the Tata Tiago EV contribute 13.3% domestic. PV market shares 53%, EV shares in Q3 financial year 2025. Sales 1,39,424 unit domestic private vehicle Q3 financial year 2025 versus 137,875 Q3 financial year 2024. EV unit is 16,190 unit versus 15,232. 18,100 plus EV charging stations also been installed. Other 1% in last financial year 2025 9 months versus 3% in financial year 2025. Vehicle financing disbursed rupees 17,884 crores in financial year 2024. Operation span 25 manufacturing units in India, UK, South Korea, etc. with rupees 8,000 crores financial year 2025 capex and 6,000 crores spent in 9 months of financial year 2025. R&D 9 centers, 6.7% of financial year 2025-24 revenue, 6,670 patents. Now you know the segments. Let's check the order value. So TMPV order book is in its vehicle order and production capacity as of November 2025. The pending orders exceed 1.5 lakh units for EVs and SUVs with a JLR wholesale at 87,286 unit Q1 financial 2026, which is down 10.7% year on year. And the PV domestic sales is 1,39,424 units Q3 financial 2025. Post demerger focus on 4.5 lakh annual PV production by financial year 2026. Why it matters? This pipeline ensures sales, but tariff impact on JLR could slow down the execution also. So why the TMPV thriving? Let's look at the industry as well. So India's is a 10 lakh crores auto market growing 8 to 10% annually, with a global luxury and EV segment expanding 15%. EV sales up 73% to 9,286 units in October 2025. PLI schemes of 1.2 lakh crores. JLR retail 24,420 units. Q1 financial 2026, down 15.1% year on year due to tariffs. Demerger enable focused growth in passenger vehicle EV 13.3% market share and JLR 33% of North America mix. TMPV Edge is 70% of EV market share, 10 new models by financial 2025, 25 manufacturing units worldwide. So what's the TMPV growth plans are? So growth drivers is Q1 financial 2026 consolidated revenue of 1 lakh 4,407 crores, down 2.5%. PAT 4,003 crores, down 63%. EBITDA is 9,700 crores, down 35.8%. PV revenue is 10,877 crores, down 8.2%. Volume is 124,800 crores, down 10.1%. GLR revenue is $6.6 billion, down 9.2%. EBIT 4%, down 419
basic points. Demerger complete 1st of October 2025. The CV Arms listed November 12, 2025. Capex of 8,000 crores in financial 2025. R&D 6.7% revenue, 670 patents for ADAS and connected vehicles. EV target 30% market share by 2030. Seven-seater EV and SUV by 2026. Financial 2025 revenue is 4,39,695 crores, which is 0.4% year-on-year. Net profit is 94,139 crores. Growth looks solid, but what are the risks? Let's discuss. So in Q1 financial year 2026, PAT down 63% to 4,003 crores due to a JLR tariff, which is $6.6 billion, revenue down 9.2%, and cyber attack. PV volume down is 10.1%. Stock down 20% in the past year, trading at a 356.80 rupees December 2025. China slowdown, which is 30% of JLR mix, supply chain chips shortage, delay EV launches. Competition from Mahindra in SUV is a major challenge. Now let's look at the numbers. So now let's discuss on the some financial terms. The market capital जो है that is of 1,33,926 crores और enterprise value जो है वो 1,73,592 crores की है. इसका मतलब है कि इसके फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा इसमें रखा हुआ है विच इज़ 26,034 crores. डेट जो है वो 0.61 है विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल. CFO बाय पैट जितना ये अपना जो है प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्या उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कैश में, दैट इज एक्सट्रीमली वेल 387% विच इज एक्सट्रीमली गुड. स्टॉक जो है अभी ऑल टाइम हाई से जो है 43.9% डाउन है विच इज अगेन एक्सट्रीमली गुड. ROCE और ROE जो कंपनी का बेहतरीन है 20 और 28.1. स्टॉक का पी जो है वो सिंगल डिजिट में हमें मिलने को देखने को मिल रहा है विच इज 9.92 विच इज एक्सट्रीमली लो. इसके बाद में जो है अगर मैं इसकी करंट प्राइस देखूं तो 364 है, लेकिन अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू देखूं तो 1317 मीन्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 1/3 के वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है. इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1.21 की है और जबकि इंडस्ट्री की जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है वो 6.24 की है. तो अगर मैं इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करूं ऑन द टर्म्स ऑफ PE विच इज़ 9.92 एंड इंडस्ट्री P 34.5, तो उसमें भी जो है काफ़ी लो है. तो दोनों ही तरीके से वैल्यूएशन में जो है हमें ये काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है. पैट्रिस्टिक स्कोर 5 है विच इज़ फेयरली गुड. अब वहीं पर ही जो है अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो ये जो है February 2015 के ही बिल्कुल लेवल में जो है हमें ये आसपास में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. PE अगर जो है अगर हम इसके 10 साल का PE देखें या 5 साल का या 3 साल का PE देखें तो हमें ये जो है जो एवरेज जो है एवरेज से हल्का सा जो है हमें ऊपर देखने को मिल रहा है. वहीं पर ही प्राइस टू बुक अगर हम देखें तो 3 साल 5 साल और 10 साल में जो है ये हमें जो है अपने मीडियन के बिल्कुल आसपास में देखने को मिल रहा है. 3 और 5 साल में मीडियन से डाउन है और 10 साल में ये बिल्कुल मीडियन के पास में है. अरे दोस्तों यहाँ पे हमें जो है प्राइस टू बुक को जो है हम ज़्यादा वैल्यू देंगे एज़ कम्पेयर टू PE. अब मैं इसका आपको इसका जो है वो रीज़न भी बता देता हूँ क्योंकि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा लगती है. प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसका जो है एक फेयरली टर्म होगा, जबकि हम PE में भी डेफिनेटली जो हम इसको जज कर सकते हैं कि PE में किस तरीके से ये काम कर रहा है. ठीक है. इसके बाद में जो है प्रोज एंड कौन सा कर देखा जाए तो कंपनीज जो है उसने अपना डेट रिड्यूस करा है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ करा हुआ है 37.2% का लास्ट 5 साल में. कंपनी की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो रिकॉर्ड है दैट इज एक्सट्रीमली गुड विच इज 29.8. कौन सा कर देखा जाए तो अर्निंग इंक्लूड्स करता है अदर इनकम ऑफ 86,954 करोड़ एंड प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी लास्ट 3 साल में -3.82 के हिसाब से डिक्रीज हुई है. यहाँ पे जो है जितने भी इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो HNI ने जो है यहाँ पे पोजीशन इंक्रीज करी है विच इज़ पॉजिटिव. करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो जितने भी जो इसके कॉम्पिटिटर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट वन विच इज़ मारुति सुजुकी जिसका 5,06,750 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वहाँ से अगर हम देखें और कोई भी आप इसमें जितने भी दूसरी जो कंपनीज है वहाँ पे देखें तो ये सबसे चीप वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है. करंट मार्केट वैल्यूज टू बुक वैल्यू काफ़ी कम है. वहीं पर ही अगर जो है अगर हम इसको सेल्स के माध्यम से अगर हम देखें कि सेल्स किस तरीके से है तो सेल्स जो है ये 16.45% CAGR से बढ़ रहा है लास्ट 3 सालों में, जबकि इसकी जो दूसरी जो कॉम्पिटिटर जो है अगर उसमें देखा जाए तो सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रा ने करा हुआ है 44 नहीं उससे भी जो बेहतरीन जो है मर्करी EV ने करा हुआ सबसे बेहतरीन 323% से ग्रो करा हुआ है विच इज़ द न्यू कंपनी. स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 760 करोड़ का. ओलेक्ट्रा जो है इसने 44% से ग्रो करा हुआ है. फोर्स मोटर ने 35% से. उसके बाद में जो है मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा ने 20.87% से. और ये जो है उसके बाद में जो है टाटा मोटर 16% से ग्रो कर रहा है. उसके बाद में जो है हुंडई मोटर जो है वो 12% से ग्रोथ हुई है. अब वहीं पर ही ROCE और ROE देखा जाए तो ROE जो है इसका वन ऑफ द बेहतरीन है. सबसे बेहतरीन जो है इसमें हुंडई मोटर का है जो कि 34.81% के ROE में ट्रेड कर रहा है और टाटा मोटर का जो है वो 29.17 ROE में कर रहा है.
79 में, जो कि सेकंड बिगेस्ट है। लाइक वाइज आरओसी अगर देखा जाए तो जो बिगेस्ट जो है वो अगेन हुंडई मोटर का है 46, और उसके बाद में जो है 19 का जो है मारुति सुजुकी का है, उसके बाद में फोर्स मोटर का 19 का है, ओलेक्ट्रा का 16 का है, उसके बाद में जो है हमारा टाटा मोटर का जो है 15 का आरओसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पैग रेशियो जो है सबसे बेहतरीन जो है 0.15 वो टाटा मोटर का ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे बेहतरीन पैग रेशियो, सबसे बेहतरीन जो है बुक वैल्यू वैल्यूशन वाइज जो है ये काफ़ी बेहतरीन है। सेल्स वॉल्यूम भी ठीक ग्रो हो रहे हैं, 16% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ फेयरली गुड आई वुड से। आरओई बिल्कुल बेहतरीन है। ऑल टाइम हाई से जो है अभी हमें 48.93% जो है वो डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन डिस्काउंटिंग लेवल के आसपास में जो है ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब वहीं पर आप देखिए कि ये जो है हमें जो है 43% जो है वो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम जो है इसकी नेट प्रॉफिट देखें तो वो हाईएस्ट एवर है, विच इज़ 94,292 करोड़। इससे लास्ट साल जो है मार्च 2025 में जो है वो 28,139 150 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने नेट प्रॉफिट करा था। अगर हम जो है लास्ट 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो लास्ट 5 साल में जो है 278 करोड़ की जो 278,000 की जो सेल होती थी, इतने करोड़ की जो सेल होती थी, दैट इंक्रीज टू 2023 में 345 करोड़ हुआ है, मार्च 2025 में 434,000 करोड़ हुआ है, मार्च 2025 में 439,000 करोड़ हुआ है, और 12 ट्रेलिंग मंथ में 392,000 करोड़ के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये अदर इनकम जो आई हुई है, जो कि 86,954 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है, उसकी वजह से जो है ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कॉन्स्टेंटली 9% था, फिर 13% हुआ, अभी भी 9% के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। अब जो है अगर इसका लॉन्ग टर्म जो है अगर हम देखें तो 5 साल में जो है सेल्स जो है वो 11% से ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट 37% से, और स्टॉक का जो प्राइस है वो 27% से। लाइक वाइज जो है अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 16% से जो है सेल्स, 65% से प्रॉफिट ग्रोथ, और प्राइस जो है वो 11% से मूवमेंट हुई है मात्र। वहीं पर ही जो है सेल्स ग्रोथ जो है 1 साल की 12 ट्रेलिंग मंथ की बात करूँ तो 7% नेगेटिव में है, प्रॉफिट जो है नेगेटिव में 59% है, स्टॉक की मूवमेंट जो है नेगेटिव में 23% के आसपास में देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10, 17, 30 और 28% के आसपास का एवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर हम बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, रिजर्व में जो है वो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। बोरिंग वगैरह जो है वो कम डाउन अप डाउन जो है वो चल रही हैं। इसके अलावा जो अगर हम CWIP के आसपास में देखें तो लास्ट ईयर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है इन्वेस्ट करे थे, 65,806 करोड़ के आसपास का जो है इसने CWIP करा था, और इस साल भी जो है इसने 21,746 करोड़ के आसपास का CWIP है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। जितना CWIP ज़्यादा हो उतना ही जो है ये आगे जो है ग्रोथ के चांसेस रखते हैं। द रीज़न इसकी CWIP का मतलब है कि आप जो है अपनी वर्किंग कैपिटल को आपने जो है वो इंक्रीज करा हुआ है, चाहे वो फैक्ट्री लगाने में हो, कुछ मशीनरीज बाय करने में हो, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। डेटर डेज जो है वो 14 से 11 आया हुआ है, 64 डेज से जो है 63 इन्वेंट्री डेज आए हुए हैं, डेज पेबल 126 से 131 दिन हो गया है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल हमेशा से नेगेटिव देखने को मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज जो है हमेशा से नेगेटिव है, आरओसी जो है वो 19 to 20%। तो इसमें जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी जो है ये सबसे बेहतरीन लेवल पे, अच्छे काफ़ी लेवल पे जो है हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहे हैं। लाइक वाइज जो है अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जो 2022 में 46.39% की जो थी, वो घट के जो है वो सितंबर में 42.58 के आसपास में हुई है, और वहीं से जो है एक माइनरी जो है 0.58 से 0.57 के आसपास में जो है ये जून 2025 में घटा हुआ है। लाइक वाइज जो FII की जो होल्डिंग जो है वो जो 13.89% की जो होती थी, वो बढ़ के अब जो है सितंबर 2025 में 17% की हो गई है, जो कि अच्छी बात है। DII की जो 15% की जो होल्डिंग 2022 में होती थी, वो बढ़ के जो है वो 17.03% के आसपास में हुई है, जो कि अगेन पॉजिटिव है। गवर्नमेंट की होल्डिंग जो है वो भी इसमें इंक्रीज हुई, 0.14 से जो है वो बढ़ के 0.31 हुई है, और पब्लिक की जो होल्डिंग 24.36% की होती थी, काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग होती थी 2022 दिसंबर में, वो जो है अभी घट के जो है 22.97 के आसपास में हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जो इसकी जो एनुअल रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग एंड कॉन कॉल को आप डेफिनेटली चेक करिएगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये मैंने 1 वीक का चार्ट खोला हुआ है, काफ़ी लॉन्ग टर्म का चार्ट है। ये जो है अक्टूबर 2021 में जो इसने जो टॉप बनाया था, वहाँ से एक लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद हम ब्रेकआउट करा था। ब्रेकआउट करने के बाद में ये इसी लेवल पे जो है फिर से इसने जो है सपोर्ट लेके ऊपर चला है, और अभी जो है फिर से उसी लेवल के बिल्कुल पास में हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक लॉन्ग टर्म जो है एक डाउनफॉल आया है, फिर ये जो अपवर्ड आया, और यहाँ से जो अभी ये फिर से इस लेवल पे आ गया, तो एक डब्ल्यू पैटर्न जो है ये बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो इसका जो लॉन्ग टर्म का जो इसका जो 2021 में जो इसने टॉप बनाया था, वहीं पर ही जो है इसने ये सपोर्ट लेके जो है आगे मूवमेंट
करने की जो है यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ से ये मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों हमने जिस तरीके से ये स्टॉक की एनालिसिस करी, इसी तरीके से जो है हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो है साथ चलना है। हमें जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, किस तरीके से कंपनी की स्टडी करनी है, किस तरीके से कंपनी को समझना है। ये जो है ये पूरी डिटेल एनालिसिस जो है आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को जो है डेफिनेटली जो है इसको रेफर करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो आप जो है मेरे से पूछना चाहते हैं कोई स्टॉक की एनालिसिस के बारे में या उसकी डीप डाइव करवाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल बी ऑलवेज देयर। लास्ट 2-3 वीक्स में जो है आई वॉज नॉट देयर, सो कंटिन्यूसली वीडियो बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आगे भी जो है वंस इन 2 वीक जो है मैं वीडियो लाने की जो है आपके साथ में जो है कोशिश करूंगा। एक डीप एनालिसिस हम स्टॉक के बारे में करेंगे और एक जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है हम मूव करेंगे। 2 से 5 साल का जो है अपना नजरिया रख के किसी भी स्टॉक के लिए जो है हम व्यू बनाएंगे और उसको जो है उसको हम राइट करेंगे विद अ वैलिड रीजन। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक विद न्यू स्टॉक, विद न्यू नेम, विद न्यू एनर्जीज। तब तक के लिए जो है टेक केयर, रेस्ट। I am signing off. This side Manthapa. See you in the next video.